Hello dear students, welcome to KSM tutorial। ଆମେ ଆଜି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ତାପ ଓ ତାପ ସଞ୍ଚରଣର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଚୁଲିରେ ବସାଇ ପାଣିକୁ ଗରମ କଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାପ ସଞ୍ଚରଣର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଲେଖ ଏବଂ ବୁଝାଅ। ଦେଖ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ବା ଆଲୁମିନିୟମର ଡେକ୍ଚିରେ ପାଣି ନେଇ ଚୁଲିରେ ବସାଇ ପାଣିକୁ ଗରମ କଲେ ତାପ ସଞ୍ଚରଣର ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ପରିବହନ, ପରିଚଳନ ଓ ବିକିରଣ। ଦେଖ ପରିବହନ କେମିତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି, ପରିବହନଟା କେମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ପରିଚାଳନା କେମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ବିକିରଣଟା କେମିତି ହେଲା। ଦେଖ ପରିବହନଟା କେମିତି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେକ୍ଚିଟିକୁ ଚୁଲିରେ ବସାଇବା ଏଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ମାନେ କ'ଣ ଚୁଲିଟା ତିଆରି ଥିବ, କ'ଣ ଧାତବ ଦଣ୍ଡରେ ତିଆରି ଥିବ, ବା କ'ଣ ହେବ ଧାତବ ଯେତେ ଚୁଲିଟା ତିଆରି ହେଇଥିବ, ଯୋଉଟା ଚୁଲିରେ ବସାଇବା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଧାତବ ଦଣ୍ଡ ବା କ'ଣ ହେବ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଠି ବି ତୁମେ ସେ ଡେକ୍ଚିଟା ବସେଇଥିବ କ'ଣ ହେବ ସେଠି ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ, ଡେକ୍ଚିଟାକୁ ଗରମ କରିବ, ଗରମ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବେ ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଣୁକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିବେ। ଏହିପରି ପରିବହନ ଉପାୟରେ ସମଗ୍ର ଡେକ୍ଚିରେ ତାପ ସଞ୍ଚରିତ ହେବ। ଦେଖ ପରିଚାଳନ କେମିତି ହେଉଛି ନା ଡେକ୍ଚିର ତଳ ଅଂଶରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ଡେକ୍ଚିରେ ପାଣି ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଚୁଲିରେ ଆମେ ବସେଇବା ହେଲା, ତ କ'ଣ ହେବ ଡେକ୍ଚିର ତଳ ଅଂଶରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ପାଣିର ଉପର ସ୍ତରରେ ଥିବା ଶୀତଳ ଏବଂ ଭାରି ଜଡ଼ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତଳ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଯାହାଫଳରେ ଉଠିବେ ଏବଂ ପାଣିର ଉପର ସ୍ତରରେ ଥିବା ଶୀତଳ ଏବଂ ଭାରି ଜଳ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତଳକୁ ଖସିବେ ହେଲା। କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତଳକୁ ଖସିବେ, ତଳକୁ ଖସିବେ ହେଲା, ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ବୁଝିହେଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଗତି ଯୋଗୁଁ ପାଣିରେ ଏକ ପରିଚାଳନ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରିଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାପ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇ ପାଣିର ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଦେଖ ବିକିରଣ କେମିତି ହେଉଛି, ଦେଖ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଡେକ୍ଚିକୁ ଆମେ ଜଳ ପୃଷ୍ଠଭାଗରୁ କିଛି ପରିମାଣ ତାପ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିକିରଣ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିବହନ, ପରିଚାଳନ ଓ ବିକିରଣ ଏହି ତିନୋଟି ଉପାୟରେ ତାପ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ। ନା କେତେ କୋଉଠି ହୋଇଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ବା ଆଲୁମିନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେକ୍ଚିଟା ପାଣିକୁ ନେଇ ଆମେ ଚୁଲିରେ ବସାଉଛେ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି। ବିକିରଣ ଉପାୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଗରମ କରୁଛେ କିଛି ପରିମାଣର ଜଳ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇକରି ସେ ବିକିରଣ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା, ତା ପରିବେଶକୁ ପଳାଉଛି ବିକିରଣ ହେଇକି, ମାନେ ଧୂଆଁ ଯେତେବେଳେ ଢଙ୍କଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସଉଛେ କ'ଣ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ମାନେ କ'ଣ ବିକିରଣ ହେଉଛି, ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ସେ ଚୁଲିରେ ଦେଖ ବସଉଛି ହେଲା, କେମିତି ତାପଟା ସଞ୍ଚରିତ ହେଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ଏଟା ମଡୁଲେସନ ରୋଷେଇ ଘରଟା ଯେନ୍ଟା ଦେଖ ଏଟା ପାତ୍ରଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖ ଏଟା ବସେଇଲେ ହେଲା, ଦେଖ ବସେଇଲା ପରେ ଦେଖ ବିକିରଣଟା ଗରମ ହେଉଛି, ଗରମ ହେଲା ପରେ ଦେଖ ପାତ୍ରଟା ଅଛି, ଏଟା କ'ଣ ହେଉଛି ବିକିରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖ ପାତ୍ରଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଗରମ କରୁଛେ ପାତ୍ରଟାକୁ, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠୁ ହିଟ୍ ଗୁଟାକ ଯାଉଛି, ମାନେ ତାପଟା ଯାଉଛି, ସେଟାକୁ ତାପ ଆମର ପାତ୍ରଟାକୁ ଗରମ କରୁଛି। ଗରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ଇଏ ଦେଖ ପାତ୍ରଟା ଏଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଏ ଫୁଟି ଯାଉଛି, ପାଣିଟା ଫୁଟୁଛି, ଫୁଟିଲା ମାନେ କ'ଣ ହବ ଇଏ ଗୋଟେ ତାପ ସଞ୍ଚରିତ ହେଇଗଲା, ପାତ୍ରଟା ବି ଗରମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିକିରଣଟା ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ହବ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଟୋଟାଲ ପାତ୍ରଟାକୁ ଗରମ କଲା, ତା ସହିତ କ'ଣ ଏଇ ପାଣିଟାକୁ ବି ଆମର କ'ଣ ଗରମ କରିଦେଲା। ଗରମ କଲା ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ହବ ଇଏ ଫୁଟି ଯାଉଛି ହେଲା। ଏମିତି ଚାଲିବ ଏଟା ବିକିରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ବିକିରଣରୁ ଆସିଲା କ'ଣ ପାତ୍ରଟାକୁ ଗରମ କଲା, ତାର ପରିଚାଳନ ହେଲା। ଦେଖ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଏଟା ହେଉଛି ବିକିରଣ, ଦେଖ ଏଟା ଆମେ ପାତ୍ରଟା ଗରମ ହେଇଛି, ଦେଖ ପାଣିଟାରେ କ'ଣ ତାପଟା ସଞ୍ଚରିତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଇଁ ଦେଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଗରମ ଲାଗିଲା ମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ପରିବହନଟା ଗରମ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ନା ଆମକୁ ପରିବହନରେ ତାପଟା ସଞ୍ଚରିତ ହେଉଛି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବିକିରଣକୁ ଆସିଲା, ବିକିରଣରୁ କ'ଣ ଆସିଲା ପରିଚାଳନକୁ ଆସିଲା, ପରିଚାଳନକୁ ଆମେ ପରିବହନ, ଯେତେ ପାତ୍ରଟା ଗରମ ଛୁଇଁଛି ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ମାନେ ପରିବହନ ଉପାୟରେ এটা ସଞ୍ଚରିତ ହେଲା। এটা ଯେତେ ଗରମ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ପରିଚାଳନ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ପରେ ହେଲା। ଦେଖ ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ରେଡିଏସନଟା ଦେଖ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ତା ସହିତ କ'ଣ ଦେଖ ବିକିରଣ, ଦେଖ ବିକିରଣ ହେଉଛି ହେଲା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ବିକିରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ହେଲା। ବିକିରଣ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡୁଛି ରେଡିଏସନ ହେଉଛି, ଯେଟା ଆମେ କହୁଛେ ରେଡିଏସନ ହେଉଛି, ବୁଝି ହେଉଛି, ଏଟା ବିକିରଣ ହେଉଛି ଏଟା ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ରଶ୍ମି ଗୁଡାକ ହେଲା।
तापर देखो एठे देखो जेमति भल से पिला माने भल पाठ पढिबो हेले एमति एरोप्लेन देखो गोटा पृथ्वीटा को एमति पूरा चारियाडे तुम बुली पारिबो देखो एटा को हमें वैज्ञानिक पद्धति माध्यम रे एटा को साइंटिफिक रूल हिसाब देखो हमें बुझिबा हला वैज्ञानिक पद्धति रे हला देखो एटा गरम होउची देखो एटा परिचलन उपाय देखो गरम होउची देखो तळ कणिका गुडा गरम होला परे कोन विकिरण माध्यम रे गरम होउची तो देखो पात्रटा रेला कणिका गुडी को तळ छी गरम होला परे ई कणिका गुडी को ऊपर को पळौची हला ऊपर को देखोटा पळै गला कोन छी ये गरम होला परे ए गुडा को देखो ऊपर को पळैला ऊपर कणिका देखो तळ को पळै आसबो देखो ए ऊपर कणिका गुडा को ना तळ को पळै आसबो पुणी ए ऊपर कणिका गुडा कोन तळ को आसला परे ये गरम ही जीवो गरम होला परे पुणी से ऊपर को उठी जीवो हला एमति होची परिचलन माध्यम रे कोन होची तापटा संचरित होची बुझी होची तळ वायु तळ जिंस गुडा तळ जिंस कोन प्रथम ऊपर को पळौची ऊपर तळ को आसी देखोटा हमें चित्र माध्यम रे बुझिबा केमति परिवर्तन होची एटा देखो स्टील सस्पेंशन टा को हमें बसैते गरम करिसे देखो विकिरण तो माने कोन विकिरण तो देखो ये कोन हला ये विकिरण माध्यम रे स्टील सस्पेंशन टा को गरम कर देला गरम करला परे कोन होची ए भीतर कोन अछि स्टील पानी की जहा भी रखा होची ए कोन होची गरम ही होची ए होची परिचलन तापर कोन धरिथा बेंटा ए साइड रे कोन गरम होची कोन तार संस्पर्श रे होची तार माने ये परिवहन उपाय रे ये कोन तापटा संचरित होची बुझी हला केम जानि एटा ए गरम होला परे कोन होची ये एटा को गरम करूची ये गरम कला पर ये बेंटा गरम हित माने परिवहन ताप संचरित होची विकिरण रो परिचलन रो पुनी विकिरण को ताप संचरित होची बुझी पारुछो या केम चित्र माध्यम रे एटा पूरा डिटेल देखा आइची तुम जानि पाउतो एटा रेडिएशन होची एटा को परिचलन कणिका गुडी को ऊपर तळे गरम होची हला देखो आ गुड एग्जांपल होची देखो एटा होची हमर केटलीटा देखो एटा को हमें गरम करछि एटा चाहाडा देखो चाहा नै हम गुड गरम करछि गरम करले देखो रेडिएशन टा गरम होची देखो परिवहन एटा होची परिचलन गरम कला माने कोन होची केटलीटा गरम होची भीतर थवा चाहा भी चाहा हो चापती हो जल जहा भी हो ये गरम होची गरम होला परे कोन हो देखो बाष्प आकार रे गुडा बाष्प तो जाउची तापर ता सहित देखो ये बेंटा ये भी गरम जो कारण ये परिवहनटा कोन होची ताप संचरित होई गला बुझेला विकिरण माध्यम रे विकिरण होला देखो रेडिएशन जेटा होची देखो चाकेटलीटा बसिची ये गरम ही गला तापर चा भीतर गुडा कोन कणिका गुडे को तळ ऊपर गरम ही जिवे तापर देखो ये बाष्प आकार किछि बाहरी जिवो बुझेला परिचलन होता आ ये देखो त बेंटा गरम ही जो हम जेटा धरले गरम लागे तमने कोन ये तापटा संचरित होई जाउची बुझि पार कि नै जानी पड़थुबा केटलीटा गरम हो देखो रेडिएशन केमती परिचलन विकिरण ऊपर एटा गरम होची माने विकिरण तापर देखोटा परिचलन आ ये होची परिवहन जेटा हमर केटली बेंटा देखो गरम हो बुझ पारलो देखो सेंती कम आ गुड एग्जांपल देखो कमार साडे देखो कमार तळे कोन लोहा पिटे ये विकिरण तळे गरम होते जेतळे एटा को हैला तो ये देखो लोहाडा को जेतळे हमको बाडाय तो परिवहन ऊपर तापड़ा संचरित होची ना नै ये देखो विकिरण बुझियला देख 2 नंबर क्वेश्चन टा कोन कहिची जदि ताप संचरण पई परिवहन और परिचालन उपाय प्रकृति रे न थांता तेबे हमर कोन कोन असुविधा होंता देखो जदि ताप संचरण पई परिवहन और परिचालन उपाय हम प्रकृति रे न थांता कोन असुविधा हला प्रत्येक रु 3टी लेखाए उदाहरण दियो कहि देखो आमे प्रथम जेतले ताप संचरण जदि हम प्रकृति रे नथा कोन असुविधा सब होंता रोसई करी हबो नाही करि पारबा नाही कि सामुद्रिक पवन आ स्थलभाग को बहिबो नाही आ मेघ मध्ये तयारी हबो नाही सुविधा कोन हबो ना घूर्णिबात्या हबो नाही शीत दिने घर गरम और खरा दिने घर ठंडा लागंता बुझी होची तो 3 नंबर देखो ग्रीष्म ऋतु रे खरा बेले कला कन्ना बा धला कन्ना रे तयारी छता व्यवहार करिबा उपयुक्त हेबो कि नै बुझाओ देखो कला रंग ताप को अधिक शोषण करे तेनु अधिक गरम लागे तेनु खरा दिने कला रंग रो छता व्यवहार करिले अधिक गरम लागिबो किंतु धला रंग कम ताप शोषण करे किंतु कम गरम लागिबो तेनु जेतले कम ताप शोषण करे तेनु जेतले कम गरम लागिबो तेनु खरा दिने धला रंग रो छता व्यवहार करले अधिक आरामदायक लागिबो देखो 4 नंबर कहिची जर तापमान यंत्र और परीक्षागार तापमान यंत्र मध्य रे थिबा दुईटी सामंजस्य और दुईटी पार्थक्य लेखो देखो जर तापमान यंत्र और परीक्षागार तापमान यंत्र मध्य रे थिबा दुईटी सामंजस्य दुईटी पार्थक्य हला प्रथम सामंजस्य देखो कहूची ना देखो जर तापमान यंत्र और परीक्षागार तापमान यंत्र कोन ना उभय यंत्र रे तापमात्रा मपा जाई थाए आ कोन ना उभय तापमात्रा यंत्र रे पारद व्यवहार करा जाई थाए हला होची सामंजस्य पार्थक्य कोन ना देखो जर तापमान यंत्र आ परीक्षागार तापमान यंत्र देखो जर तापमान यंत्र रे कोन होची ना मनुष्यर देहर तापमात्रा मपा जाई थाए आ परीक्षागार तापमान यंत्र रे कोन हुए ना ये परीक्षागार रो विभिन्न कार्य पई व्यवहार करते परीक्षागार रे व्यवहार करे एक परीक्षागार तापमान यंत्र को बुझी होची देखो ताप आ जर तापमान यंत्र को परास केते देखो जर तापमान यंत्र रो परास होची 35 डिग्री सेल्सियस रु 42 डिग्री सेल्सियस पर्यंत थाए आ परीक्षागार तापमान यंत्र रो परास होची -10 डिग्री सेल्सियस रु 110 डिग्री सेल्सियस पर्यंत थाए
बुझीगला। तो ये हूँ जर तापमान यंत्र और परीक्षागार तापमान यंत्र मध्य पार्थक्य बुझीगला। देख नंबर 5 रे कौन कही शीत दिने तुमको गोटे मोटा कमल बा दुईटी पतला कमल जोखी घड़ी हेबाकू विकल्प दिगला तुम्हें केउटी और कहीं बाछिब लेख। उत्तर लिखिब शीत दिने आमको गोटे मोटा कमल बा दुईटी पतला कमल जोखी जोड़ी हेबाकू विकल्प दिगला तेबे आमे दुईटी पतला कमल जोखी घड़ी हेबाकू पसंद करिबा। कारण कौन ना पशम होउची तापर कुपरिवाही आ दुई कमल मध्य थिबा वायु मध्य कुपरिवाही तेणु देहर ताप बाहर परिवेश को जीव नाही किंबा बाहर ताप मध्य शरीर भीतर को प्रवेश करि पारिबो नाही हैला। नंबर 6 रे देख 6 रे कोन अछि बही रे दिए जाइथिबा उदाहरण व्यतीत ताप सुपरिवाही और ताप कुपरिवाही दुईटी लेखाए पदार्थर नाम लेख। देख ताप सुपरिवाही होउची कोन गुडा गोटे ताप गुडा कोन ग्रहण करबे हैला जे रही जो तापटा। ताप कुपरिवाही कोन जो गुडा कोन ताप ग्रहण करि पारबेनी माने गरम कले कोन बसे गुडा को गुडा को तापटा से माने कोन गति करि पारबो हैला। ताप सुपरिवाही कोन तापटा तापटा कौन ज्योति गति करू जमी ताप सुपरिवाही उदाहरण होची लुहा तंबा आलुमिनियम इत्यादि। आ ताप कुपरिवाही उदाहरण होची काठ हैला। काठटा को धर हम गरम करछे हमको भी गरम लागी काठटा को धर गोटे जगह हम नियारे धर पड़िबा तो हमर अन्न पाछटा को गरम लागेनी कि लुहाटा को गरम करबो अन्न पाछटा को धरले कोन से गरम लागबो से ताप सुपरिवाही। ताप कुपरिवाही माने कोन जे गुडा को तापटा को ग्रहण करि करंती नै करि पारंती नै हैला। ने होची काठ काच प्लास्टिक पत्थर इत्यादि जे हम प्लास्टिक को धर पड़िबा तो हमको गरम लागबोनी हैला। तेनु ताप कुपरिवाही होची काठ काच प्लास्टिक पत्थर इत्यादि आ ताप सुपरिवाही तो कहि देली लुहा तंबा आलुमिनियम इत्यादि हैला। देखो 7 नंबर कही नंबर 7 रे शून्य स्थान पूरण कर गोटे वस्तुर तापीय अवस्था वस्तुर डैश ऊंचाई थाए। आंसर हम तापमात्रा गोटे वस्तुर तापीय अवस्था वस्तुर तापमात्रा सूचाई थाए। खर अच्छी देख टक टक फुटुथिबा पानीर तापमात्रा डैश तापमान यंत्र द्वारा मपा जाई पारिबो नाही। टक टक फुटुथिबा पानीर तापमात्रा जर तापमान यंत्र रे मपा जाई पारिबो नाही बुझी। तापर देख डैश उपाय रे ताप संचरण पाई कोनोसी माध्यम दरकार हुए नाही। विकिरण उपाय रे ताप संचरण पाई कोनोसी माध्यम दरकार हुए नाही। डैश रंगर पोशाक और डैश रंगर पोशाक तुलन रे अधिक ताप अवशोषण करि पारे। कला रंगर पोशाक और धला रंगर पोशाक तुलन रे अधिक ताप अवशोषण करि पारे। उणर अछि देख गोटे स्टील चामच गरम पानी रे बुडाइले उभयंक डैश और डैश हला जाई ताप पानी चामच को प्रवाहित हेबो। देख गोटे स्टील चामच गरम पानी रे बुडाइले उभयंकर तापमात्रा समान हला जाई ताप पानी चामच को प्रवाहित हेबो। देख चोर अछि डैश रे स्थल समीर सक्रिय होई थाए राति रे स्थल समीर सक्रिय होई थाए। देख छर अछि डैश रंगर पोशाक शीत ऋतु रे पिंधा जाय। आंसर हेबो गाढ़ रंगर पोशाक शीत ऋतु रे पिंधा जाय। डैश रे समुद्र समीर सक्रिय होई थाए दिन रे समुद्र समीर सक्रिय होई थाए हैला। डैश प्रक्रिया रे प्रवाहर डेभिंग निरापदवती एक उदाहरण अटे। परिवहन प्रक्रियार प्रभावर डेभिंग निरापदवती एक उदाहरण अटे। नंबर 8 रे अछि देखो 8 रे 30 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे 1 लिटर पानी सहित 50 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे थिबा हाफ लिटर हैला कोन अछि हाफ लिटर 1/2 माने हाफ लिटर पानी मिसा गला हैला। तेबे एही मिश्रणर सर्वश्रेष्ठ तापमात्रा कोन रहिबो तो कोर अछि 20 डिग्री सेल्सियस रु कम हेबो खर अछि 50 डिग्री सेल्सियस रु बेसी हेबो ए घर अछि 80 डिग्री सेल्सियस रु 80 डिग्री सेल्सियस हेबो घर अछि देखो 30 डिग्री सेल्सियस रु बेसी हेबो आ 50 डिग्री सेल्सियस रु कम हेबो। देखो कोडा हेबो 20 डिग्री सेल्सियस रु कम हेबो खर अछि 50 डिग्री सेल्सियस रु बेसी हेबो घर अछि 80 डिग्री सेल्सियस हेबो घर अछि 30 डिग्री सेल्सियस रु बेसी और 50 डिग्री सेल्सियस रु कम हेबो। आंसर हेबो घटा 30 डिग्री सेल्सियस रु बेसी और 50 डिग्री सेल्सियस रु कम हेबो हैला। जेतेबे हम कोन 30 डिग्री सेल्सियस रे जेतेबे 1 लिटर पानी को गरम करबा तो तापरे कोन करबा 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रे पुनी हाफ लिटर पानी मिसेइबा पानी मिसा गला त माने कोन हेबो से 30 डिग्री रु बेसी और 50 डिग्री रु कम हेबो कारण 30 डिग्री तापमान रे थिला 1 लिटर पानी जेतेबे हम 50 डिग्री सेल्सियस रो हाफ लिटर पानी आनी करी से 1 लिटर पानी ने मिसेइबा त माने कोन हेबो
पानी तापमात्रा 30 डिग्री तो सी अच्छी तो कम तो हम ना पुणी 50 डिग्री सेल्सियस हाफ लिटर पानी आम मिसेदेवा मिसेले कौन हम 30 डिग्री मैंने पानी तापमात्रा के 30 डिग्री सेल्सियस रु बेसी हे 50 डिग्री सेल्सियस रु कम हे कि 30 डिग्री सेल्सियस पानी बेसी अच्छी तेणु आम 50 डिग्री सेल्सियस रु कम हे जदि 30 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा जदि मन को तापमात्रा 30 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा 1 लिटर अच्छी धर पानी जदि धर 30 डिग्री सेल्सियस पानी कम था माने अल्प था 50 डिग्री सेल्सियस पानी बेसी था कौन हम 50 डिग्री सेल्सियस बेसी था कि जेहेतु देखो 30 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा कौन अच्छी 1 लिटर पानी अच्छी आम 50 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा हाफ लिटर पानी मिसेगा तार कौन हम ये पानी 50 डिग्री सेल्सियस मिसिक कौन एवरेज आसी 30 डिग्री अच्छी 1 लिटर तो ये मिसीज हाफ लिटर मैंने 1 लिटर 500 है 1 लिटर 500 30 डिग्री बेसी अच्छी पानी से सेल्सियस तो 50 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा के अच्छी हाफ लिटर अच्छी तापमात्रा पानी के 30 डिग्री सेल्सियस बेसी हे और 50 डिग्री सेल्सियस कम हे बुझीगला देख 9 नंबर कौन अच्छी 40 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे थिबा 10 ग्राम रो गोटे लुहा कंटा 40 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे थिबा 1 लिटर पानी रे पकाई दिया गला तेबे कोन हबो कोर अछि पानी रो लुहा कंटा को ताप संचरित हबो खोर अछि लुहा कंटा रो पानी को ताप संचरित हबो गोर अछि पानी रो लुहा कंटा को बा लुहा कंटा रू पानी को ताप संचरित हेबो नाही घर अछि प्रथम अवस्था रे पानी रू लुहा कंटा को किछि समय परे लुहा कंटा रू पानी को ताप संचरित हो आंसर ता हबो देखो गोटा पानी रू लुहा कंटा को बा लुहा कंटा रू पानी को ताप संचरित हेबो नाही जेते कोन अछि क्वेश्चन ता देखो हमर आंसर कोन ला गोटा ला पानी जो लुहा कंटा को बा लुहा कंटा रू पानी को ताप संचरित होबनी 40 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा अछि हमें 10 ग्राम रो गोटी लुहा कंटा कोन 40 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा थिबा 1 लिटर पानी रे हमें पकई दवा तो कौन हम पानी लुहा कंटा लुहा कंटा पानी को ताप संचरित हम कि हम ना 40 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा 10 ग्राम गोटे लुहा कंटा अच्छी यदि हम 40 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा 1 लिटर पानी पकई देवा किसी परिवर्तन हम कि हम ना कारण 40 डिग्री सेल्सियस 10 ग्राम गोटे लुहा कंटा यदि हम 40 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा 1 लिटर पानी पकईवा तो कौन हम पानी लुहा कंटा बा लुहा कंटा पानी को ताप संचरित हम ना कि से 40 डिग्री सेल्सियस थिला आ 40 डिग्री सेल्सियस ही आम से पानी पकई देले तेणु कौन हम ना पानी लुहा कंटा को बा लुहा कंटा पानी को ताप संचरित हेबो नाही गोटा आंसर है देखो नंबर 10 रे कोन कहिची गोटिए प्लास्टिक चामच आइसक्रीम कप रे पुराइले तार अन्य प्रांतटी कोन हबो देखो कोर अछि मोटे शीतल हेबो नाही खोर अच्छी देख परिवहन प्रक्रिया जो शीतल हो गोर अच्छी देख परिचालन प्रक्रिया जो शीतल हो विकिरण प्रक्रिया जो शीतल हो देख गोटे प्लास्टिक चामचटा जो आम आइसक्रीम कप्रे पूरेबा तार अन्न प्रांतटी कौन हम अन्न प्रांतटी मोटे शीतल हे ना कारण प्लास्टिक कौन हम तापटा संचरित हम कि हम ना ठंडाटा हम कि काठ कौन हम ना तेनाली प्लास्टिक भी कौन हम तापटा कुपरिवाही तेनाली प्लास्टिक चामच जो ठंडाटा कौन हम आइसक्रीम खाऊे से तापटा संचरित हम कौन पाई ना प्लास्टिक टा गोटे ताप कुपरिवाही तो आंसर कौन हेबो कोटा हेबो आंसर हेबो मोटे शीतल हेबो नाही बुझीला गोटे प्लास्टिक चामच आइसक्रीम कप रे पुराइले तार अन्य प्रांतटी मोटे शीतल हेबो नाही देखो नंबर 11 रे कोन कहिची 11 रे अछि स्टेनलेस स्टील पान रो तळ पृष्ठ साधारणतः तंबारे तयारी करा जाई थाए कारण कोन कोर अछि तंबारे तयारी तळ पृष्ठ पान रो स्थायित्व बढ़ाई थाए खोर अच्छी पानी रंगीन और सुंदर देखा जाए गोर अच्छी तंबा को सुपरिवाही अटे घर अच्छी स्टेनलेस स्टील अपेक्षा तंबार पृष्ठ सहज सफा करी हुए देख आंसर हेबो कोन ना तंबा एक सुपरिवाही अच्छे परिवाही अटे कौन जो स्टेनलेस स्टील पान तलपृष्ठा साधारण तंबार कि या जल्दी गरम हम तंबाटा कौन तापर सुपरिवाही तेणु ताप जेहेतु सरी तंबाटा हूँ ताप सुपरिवाही तेणु स्टेनलेस स्टील पान तलपृष्ठ कौन दी जाए तंबाटा दी जाए कौन हम जल्दी पानटा कौन स्टेनलेस स्टील पानटा कौन जल्दी गरम है तेणु कौन से तंबार से दी जाए ना से जल्दी गरम हो तेणु कौन ना तंबा एक सुपरिवाही अटे आंसर कौन है गोड़ है तंबा एक सुपरिवाही अटे देख 12 नंबर क्वेश्चन कौन कही 12 नंबर जोटा जो जगार भीषण खरा हुए से कोठा घर बाहर कांत को धला रंग करा जाए कहीं बुझाओ देख धला रंग कम ताप को शोषण करे तेणु खरार रक्षा पाइबा घर बाहर को धला रंग दि जाए हमको गरम भी लगभग भीतर रहा माने खराटा कौन हम खराटा से तापटा को कौन कर ताप को शोषण धला रंग कम शोषण करे अन्य रंग अपेक्षा तेणु से आम कौन करूँ ना जो जगह भीषण खरा हुए से घर कोठा घर बाहर को कंत को धला रंग करा जाए बुझीगला ना धला रंग कम ताप को शोषण करे तेणु खरार रक्षा पाइबा घर बाहर को धला रंग दि जाए
देख नंबर 13 लास्ट नंबर देख नंबर 13टा मरुभूमिर अधिवासी माने कहीं साधारणतः धड़ा पोशाक पिंधि थांती और मुंडरे धड़ा पगड़ी बांधि थांती बुझाओ आंसर हम कौन उत्तर कौन हम देख मरुभूमि रे अधिक खरा हुए और अधिक गरम लगे धला रंग कम ताप शोषण करे तेणु धला पोशाक पिंधिले आराम लगे तेरे मरुभूमि कौन बेसी खरा हुए बेसी गरम बाली बेसी थाए मरुभूमि तेणु अधिक जो खरा हुए कौन बाली गुड़ाक बेसी उत्तप्त हुए मैंने गरम लगे बाली गुड़ाक बेसी गरम हो कौन तार पृष्ठभाग आमर स्थल भागटा बेसी गरम हो मरुभूमि अधिक खरा हुए तेणु से आमको बेसी गरम लगे कारण मरुभूमि तो चारिआडे बाली से बाली गुड़ाक उत्तप्त बोले कौन गरम हो बेसी गरम है माने गरम आमको बेसी गरम लगे तेणु धड़ा रंग कौन कम ताप शोषण करे तेणु धड़ा पोशाक जो पिंधवा आमको आराम लगे तापर कौन कही मुंडरे धड़ा पगड़ी कहीं बांधि था बुझाओ देख से मुंडर केश कौन कला थी अधिक ताप शोषण करे और आमको कष्ट लगे जो आम मुंडर केश गुड़ा कौन कला कलर जो आम कला रंगर आम जो खराटा मुंडरे पड़ब कौन हम कलाटा बेसी बेसी तापटा को शोषण करब तेणु आम जब धड़ा पगड़ी बांधिला मैंने कौन हम से तापटा को सी एत शोषण कर धड़ा रंग कम ताप को शोषण करे तेणु से मुंडर कला केश कला थी अधिक ताप शोषण करे और आमको कष्ट लगे धड़ा पगड़ी बांधि था बुझीगला नंबर तुमरटा अभ्यास सरीगला ताप और ताप संचरण आशा करुच्ची पिला माने भिडियो को भलसे बुझी पारिथिबो भिडियोटा को लाइक कमेंट सब्सक्राइब एवं शेयर करिवो तापर बेल आइकन टा को दबाई देबो जहा फल रे कि मोर भिडियो आसे तुम नोटिफिकेशन पड़ेबो थैंक यू।